We start with the next chapter, which is stationary waves. In this case, you can see that the wave is being produced in which an object, a person is moving the string up and down, and only the wave profile is created, and no wave is moving in any specified direction. This is called a stationary wave. Again, you can do this here, that we have a string attached at two ends. We can make it to oscillate from the center. It will make a single loop. We can make it oscillate with higher frequency. It will make two loops, and even further higher frequency, it will make three loops. But in this case, only the wave profile is created, but no wave is moving in any direction. Such waves are called stationary waves. In this case, again, you can see we have two waves, blue and red. Sometimes they meet constructively. They are continuously moving in the opposite direction, and simultaneously they are superposing each other. Sometimes they meet constructively, sometimes they meet destructively, and we get a resultant pattern as shown in this black diagram. The black string is actually the superpositioning of these two waves, or the resultant wave due to the two waves, blue and red. Now, in this case, observe there are certain points which I have represented in red. Now, these points never move. These points are called nodes. So, whenever stationary wave is created, there are certain points which never move. An example, blue and green, they superpose. Sometimes they have constructive interference, sometimes they have destructive interference, and the resultant wave is the one which is created in black. Now, what are the conditions? Conditions are very simple. The two waves must be moving in the opposite direction with the same speed, wavelength, and frequency, and same amplitude. So when they do this, they create a stationary wave. So what are stationary waves? Stationary waves are created due to superpositioning of an incident and a reflected wave moving in the opposite direction in the same medium. They are called stationary wave because the wave profile does not move, and secondly, they are not transferring any energy in any direction. So these are called stationary waves. What is the conditions necessary for stationary waves? Number one, both waves are either transverse or longitudinal. Both waves have same frequency, speed, wavelength, and nearly equal amplitude. They must be traveling in the opposite direction while being superposed in the same medium, and they must have same plane of polarization for transverse waves. In case they're moving in the medium must possess mass and elasticity. If these conditions are satisfied, we will have a stationary wave being created in which only wave profile is created, but no energy is transferred. Wave profile भी stationary रहेगी यहाँ पे. So, जैसे मैं नीचे दिखा रहा हूँ, ये particles up and down move कर रहे होंगे very fast, and there are certain points which I denote as nodes N. They always remain stationary, whereas there are certain points which we call as antinodes in between two nodes, which will have maximum amplitude of vibration. So this is the profile that is created whenever we have a stationary wave being generated. और वही concept है, stationary wave कब generate होगी? When the two waves are moving in the opposite direction, same amplitude, same frequency, same wavelength, and they superpose. So this is a basic condition of stationary waves. Then again, they ask you what is the speed of a wave, stationary wave. I have just said that stationary wave remains stationary. Wave profile does not move. Then what is the speed of the stationary wave? What does that refers to? इसको आपने बाकायदा explain करना है.
कि स्टेशनरी वेव जब क्रिएट होती हैं वो सुपर पोजिशनिंग ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव्स से क्रिएट होती हैं विच आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. The speed of the progressive wave forming the stationary wave is referred to as the speed of the wave. अब जो दो waves stationary wave generate कर रही हैं उनकी speed जो है उसको ही speed of the stationary wave create कहा जाएगा because उन्हीं की वजह से stationary wave generate होती है. So this is how we explain the concept of speed of the wave. What are the similarities and what are the differences? First of all, similarity is that energy is transferred in the direction of the wave. कोई भी वैसे साउंड है मेरी, मैं बोल रहा हूं तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मगर स्टेशनरी वेव में कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती. वेव प्रोफाइल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव, जबकि स्टेशनरी वेव में वेव प्रोफाइल अपनी ही जगह पे स्टेशनरी रहती है. Every point displaced has the same amplitude and after some time it turns back to its original position. यानी permanent displacement नहीं होती. जबकि stationary wave में there are points which never move and there are points which have maximum amplitude which are called antinodes which are in between two nodes. So progressive wave में तमाम points का amplitude same होता है और between two nodes points have different amplitudes. Neighboring points are not in phase. Progressive wave में एक वेव लेंथ का फासला होगा तब दो पॉइंट्स इन फेज आएंगे, जबकि प्रोग्रेसिव वेव्स में तमाम पॉइंट्स बिटवीन टू नोड्स आर इन फेज एंड ऑन आइदर साइड ऑफ द नोड्स दे आर आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्रीज. जैसे मैं दिखा रहा हूं, ये डॉटेड लाइंस जो हैं दे ऑल आर इन फेज, यानी कि जो ब्लू वाली वेव बनी हुई है इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं दे आर इन फेज. सिमिलरली नोड के दूसरी तरफ जितने भी पॉइंट्स हैं दे आर इन फेज विद ईच अदर, मगर लेफ्ट और राइट पे जो पॉइंट्स हैं दे आर नॉट इन फेज, आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्रीज. ये पॉइंट जो है यहां पे बल्कि मैं मेंशन कर देता हूं, एक्स एंड वाई से मैं शो करता हूं. फॉर एग्जांपल जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. ये मेरा एक्स पॉइंट है और ये मेरा y पॉइंट है. x और y पॉइंट जो है दे आर आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्रीज. x एंड y, ओके. x एंड y पॉइंट जो है दे आर नॉट इन फेज. ओके जी, नेक्स्ट देखिएगा. इन दिस केस सिंपली आपने समझना है कि अगर हम दो नोड्स की बात करते हैं उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो हाफ वेवलेंथ होगा. इसी तरीके से दो एंटी नोड्स के दरमियान में डिस्टेंस होगा वो भी हाफ वेवलेंथ होगा. ठीक है. और इस केस में जो आपके एक्स एंड वाई पॉइंट्स हैं अगर आप देख रहे हैं उनमें दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम होगा. इसमें मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे मैं दोबारा वही एलैबोरेट कर रहा हूं कि पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई का जो एम्पलीट्यूड है वो दोनों का सेम होगा बिकॉज दे आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पोजिशन. तो दे विल हैव सेम एम्पलीट्यूड x and y. So these are the basic properties of stationary waves. Next is stationary waves formation. ये मैं आप बोर्ड पे सॉल्व कर दूंगा इसको कि how we have stationary wave that is being formed and how to draw their diagram. What are the different instruments which use stationary waves for formation? So first of all, the first instrument that we discuss is called stretched string. इसकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी उसको हम कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक. व्हाट इज फर्स्ट हार्मोनिक? फॉर एग्जांपल हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं
which are being attached and they are being placed here. This is the length of the string, and if I pluck from the center, pluck from the center, तो पहली जो वेव बनेगी उसकी ये शेप होगी. And in this case, this length is representing half wavelength. या जो wavelength है, that will be equal to 2L. This is your first harmonic, first possibility. In this case, the frequency will be equal to V over lambda. That means V over lambda naught, which is V over 2L. इसको कहते हैं fundamental frequency. This is the first possibility. इसमें जो length of the string होगा वो half wavelength को represent करेगा. Second harmonic, second possibility, same diagram, same length, but now इसमें आप देखिएगा, this is a node, this is a node, this is empty node. इसके अंदर दो नोड हैं और दो एक empty node है. Second harmonic में there will be three nodes and two empty nodes. ये भी नोड एक दरमियान में आ जाएगा, एक एंड पे आ जाएगा. There will be two empty nodes. Now in this case, length is equal to wavelength. Length wavelength के बराबर होगा और frequency V over lambda 1 which is V over L के बराबर होगा. इसकी आपने अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो V over L बन जाएगा और नोट कीजिएगा V over L को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो V over 2L, इसको F नॉट कह रहा था मैं, तो ये 2F नॉट बन जाएगा. तो सेकंड पॉसिबिलिटी इज दैट द फ्रीक्वेंसी विल बी डबल. मेथड वही है. और इसी तरीके से थर्ड हार्मोनिक, सर यहां पे हमने 3 नोड्स बनाए थे. थर्ड हार्मोनिक में 4 नोड्स बनेंगे. 1 2 3 और 4. ये हमारे पास है. इसमें सब में जो है वो लेंथ सेम ही आ रही है, मगर हम जब फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें शेप ऑफ द वेव भी चेंज हो जाएगी. अब यहाँ पे जो लेंथ है वो 3/2 लैम्डा को रिप्रेजेंट कर रही है. यहां से wavelength will be 2L/3 and frequency will be V over lambda 2L/3 which becomes 3V/2L which is equal to 3F naught. इस तरीके से ये 3 पॉसिबिलिटी हैं. चौथी पॉसिबिलिटी में भी जा सकते हैं. तो आप नोट कीजिएगा इसके जो हार्मोनिक्स आ रहे हैं वो F naught, 2F naught, 3F naught, 4F naught ही आएंगे. These are the harmonics which are possible in case of a stretched string. ये हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर हम स्ट्रेशनरी वेव क्रिएट करते हैं. इसमें क्या होगा, जब हम प्लग करेंगे एक वेव राइट पे जाएगी, एक वेव लेफ्ट पे जाएगी और वो फिर दोबारा यहां से जब वो मूव कर रही होगी राइट से की तरफ और ये लेफ्ट की तरफ, ये दोनों वेव्स आपस में सुपरपोज करेंगी और ये पहली पॉसिबिलिटी है जो इसमें क्रिएट होगी. इसमें लेंथ हाफ वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करती है. फ्रीक्वेंसी इज V over 2L. Similarly, second harmonic and third harmonic. This is your first possibility of waves created.
Second instrument is called a closed pipe. क्लोज पाइप के लिए हमने सिंपल एक पाइप दिया हुआ है, उसको एक एंड से क्लोज किया हुआ है, हम एयर ब्लो करते हैं, एनर्जी ट्रेवल करती है और यहां से रिफ्लेक्ट होती है. दिस इज योर इंसिडेंट वेव एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड वेव. जब भी दो वेव्स एक ही रीजन पे मूव कर रही हैं और वो सुपरपोज करेंगी तो स्टेशनरी वेव जनरेट होगी. अब इस केस में आपको ये समझना है कि इसका हम डायग्राम क्या बनाएंगे. पहली बात तो ये है कि यहाँ पे तो नोड ही होना है, बिकॉज दिस पार्टिकल कैन नॉट मूव. और यहाँ पे एंटी नोड होगा बिकॉज पार्टिकल कैन फ्रीली ऑसिलेट. सो ऐसी वेव बनेगी कि एक साइड पे नोड है और दूसरी साइड पे एंटी नोड. इसके लिए डायग्राम देखिएगा, मैं बना रहा हूं. ये मेरी पहली पॉसिबिलिटी है और ये क्वार्टर वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है. दिस इज माय फर्स्ट पॉसिबिलिटी. इट रिप्रेजेंट्स क्वार्टर वेवलेंथ. इफ द लेंथ is equal to L, L will be equal to lambda naught by 4. Lambda naught will be 4L. For frequency, B over 4L. This is your fundamental frequency. Which is the highest frequency, lowest frequency and longest wavelength. Then we have the second possibility. अब जिसका पहले केस में देखा था, हमारे पास दो नोड्स थे, सेकंड में तीन नोड्स हो गए, थर्ड में चार नोड्स हो गए. इस तरह यहाँ पे एक नोड है, अब यहाँ पे दो नोड्स बनेंगे. इसमें आप दो नोड्स पहले मार्क कर लेंगे. एंड दिस इज द शेप ऑफ द वेवलेंथ दैट इज बीइंग फॉर्म्ड. सबसे पहली पॉसिबिलिटी यही है कि यहाँ पे क्वार्टर वेवलेंथ बनेगी, लाइक दिस क्वार्टर वेवलेंथ. और इसमें थ्री क्वार्टर वेवलेंथ L इज इक्वल टू, ये मेरा L है, 3 लैम्डा बाय 4. तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4L बाय 3. और फ्रीक्वेंसी अगर मैंने निकालनी है तो B over lambda 1 which is 3D over 4L and that becomes 3F naught. इसके अंदर जो पॉसिबिलिटी है वो यही है कि पहली जो वेवलेंथ बनती है क्वार्टर बनती है, सेकंड पॉसिबिलिटी 3 क्वार्टर की है. इन बिटवीन कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है. और तीसरी पॉसिबिलिटी, अब हम तीन नोड्स बनाएंगे. यहां पे L is equal to 5 lambda by 4. So lambda will be equal to 4L by 5. And frequency V over 4L by 5 which is 5V by 4L which is 5F naught. इसकी पॉसिबिलिटी यही है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 टाइम्स ग्रेटर होगी और द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. सो जनरल पॉसिबिलिटी इसमें जो आती है वो ये आती है F naught, 2F naught, 3F naught, 5F naught and so on. These are the possibilities that are being created in case of closed pipe. अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन भी आता है कि हमारे पास एक पाइप है which is filled with water. यहां पे हमारे पास पहली फ्रीक्वेंसी बन रही है, पहली स्टेशनरी वेव बन रही है. पहली पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे क्वार्टर वेवलेंथ बनेगी. L will be equal to lambda by 4. पहली पॉसिबिलिटी क्वार्टर वेवलेंथ. दूसरी पॉसिबिलिटी
अब हम यहां से पानी को नीचे ले जा रहे हैं, पानी आ गया यहां तक। अगेन स्टेशनरी वेव इज क्रिएटेड। यहां पे नोड ही बनेगा, बिकॉज जैसे यहां पे नोड बन रहा है, यहां पे नोड बनेगा, यहां पे नोड बनेगा। शेप क्या बन जाएगी? इट विल बी 3/4। दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग लैम्डा बाय 2, और ये आपका लैम्डा बाय 4 है। टोटल लेंथ बन जाएगी 3 लैम्डा बाय 4। इस तरीके से अगर पानी की लेंथ या जो ट्यूब की लेंथ है वो भी इंक्रीज करे, उससे भी आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अ क्लोज पाइप। थर्ड इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द ओपन पाइप। जैसे कि ये हमारे पास ओपन पाइप है, दोनों साइड से ओपन है, हम एयर ब्लो करेंगे। यहां पे भी एयर का कॉलम है, यहां से इंसिडेंट वेव है, यहां से टकरा के वापस जाएगी, दैट इज योर रिफ्लेक्टेड वेव। और जब ये सुपरपोज करेगी तो स्टेशनरी वेव जनरेट हो जाएगी। अब कैसे होगी? सेंटर में नोड होगा, यहां भी एंटी नोड, यहां भी एंटी नोड। दिस इज द शेप ऑफ द वेव। और यहां पे लेंथ इज रिप्रेजेंटिंग हाफ वेवलेंथ, या wavelength is equal to 2L, and from here frequency will be equal to V over 2L. This is your first harmonic. पहली हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक, एक और एक, दो नोड्स, जिसमें आपकी लेंथ कंप्लीट वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू V ओवर L। इसको हम 2V/L भी कह सकते हैं, which is 2F0। ये बिल्कुल पहले वाले की तरह नेक्स्ट हार्मोनिक जो है वो 2F0 के बराबर है। थर्ड हार्मोनिक, दो नोड थे यहां पे, एक दो, अब तीन नोड हो जाएंगे। ये आपकी थर्ड हार्मोनिक बन गई। दिस इज L इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाय 4, सॉरी 3 लैम्डा बाय 2। वन कंप्लीट वेवलेंथ एंड हाफ वेवलेंथ। यहां से आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी 2L/3, और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3V/2L, which is 3F0। So these are the harmonics for closed pipe, open pipe and closed pipe। ये ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। इससे आपने वेवलेंथ कैसे डिटरमिन करनी है और किस तरह उसको आपने ट्राई करना है, वो आपने बेसिकली ड्रॉ करना है। अब यहां देखिएगा, ये हमारी वही फर्स्ट हार्मोनिक है स्ट्रेच स्ट्रिंग की, जिसमें हमें बताया हुआ है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 75 सेंटीमीटर, और यहां से हमने वेवलेंथ निकालनी है, तो हाफ वेवलेंथ इज 75 सेंटीमीटर। So wavelength will be equal to 2 times 75, which comes out to be 150 centimeters, और meters के अंदर 1.5 मीटर बन जाएगी। So we have the wavelength. What is the speed? Frequency दी हुई है हमें, तो V is equal to F lambda लगाएंगे तो आपके पास V speed की वैल्यू आ जाएगी, which comes out to be 540 in this case. Again same question, why with reference to stationary waves, what is meant by speed of the wave? वही डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी। इट इज बीइंग क्रिएटेड बाय टू प्रोग्रेसिव वेव्स moving in the opposite direction. The speed of these progressive waves is called as the speed of the stationary wave. So it's a very common question, 3-mark question for this. Okay, this is my second possibility.
सेकंड हार्मोनिक ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग, वो कहते हैं जी कि टोटल लेंथ आपकी एल है, एक्स जो है 1/8 एल है, इधर भी वाई जो है वो 1/8 एल, इसका मतलब दे आर एट द सेम पोजिशन फ्रॉम द एंड। और उन्होंने बताया हुआ है कि जी एक्स का जो फ्रीक्वेंसी है एफ है, एम्पलीट्यूड ए है, तो व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई, वही होगी जो एक्स की है, एम्पलीट्यूड भी वही होगा जो एक्स का है, बिकॉज दे आर एट द सेम पोजिशन। फेज, अगर एक्स नीचे की तरफ जा रहा होगा तो वाई ऊपर की तरफ जा रहा होगा, दैट मीन्स दे मस्ट बी आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्रीज। It is always 180 degrees on either side of the nodes. Speed, V is equal to F lambda, or in this case, lambda is equal to L. So V is equal to FL, ही हमारा आंसर आ जाएगा straight away, because wavelength is equal to the length of the string. Stationary wave की speed क्या होती है? Same answer. That is, it is created due to superposition of the two waves. Okay जी, next देखिएगा. Okay, we again have a string. वेवलेंथ क्या होगी? वो कहते हैं जी कि 50 हर्ट्ज है और 40 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है, तो वेवलेंथ विल बी इक्वल टू v ओवर f, 40 डिवाइड बाय 50 इज 0.8 मीटर्स। अब वो कहते हैं ये अरेंजमेंट किस तरीके से स्टेशनरी वेव जनरेट करेगी? तो जो वाइब्रेटर है वहां से एक वेव जो है वो मूव करेगी टुवर्ड्स क्यू, क्यू से टकरा के वापस जाएगी, और ये दोनों वेव्स आपस में सुपरपोज करेंगी, एंड दैट विल क्रिएट द स्टेशनरी वेव, because they will be of the same amplitude, speed, and they will be moving in the opposite direction. अब ये जो डायग्राम दिखाई हुई है ये एक स्टेशनरी वेव की एक इंस्टेंट की डायग्राम है। इसमें नोड्स कहाँ कहाँ होंगे? जो पॉइंट सेंटर पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा वही नोड होगा। ये नोड्स हैं और इनके दरमियान में एंटी नोड्स। कैलकुलेट द लेंथ पी क्यू। अब आप नोट कीजिएगा, दिस रिप्रेजेंट्स 1.5 वेवलेंथ। वेवलेंथ 0.8 है, तो 1.5 वेवलेंथ का मतलब है 1.5 into 8, 0.8, so that you get the answer as 1.2 meters. So you have looked at the shape of the wave, and from there you can determine कि कितनी वेवलेंथ रिप्रेजेंट हो रही है, और अगर वेवलेंथ गिवन है तो फिर आप उससे लेंथ की कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो कहता है जी 5 मिली सेकेंड के बाद ये वेव कहां पे होगी? तो नोट कीजिएगा, हमें उन्होंने फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज। सो फ्रॉम हेयर टाइम पीरियड इज 20 मिली सेकेंड्स। 20 मिली सेकेंड में एक कंप्लीट वाइब्रेशन होगी, जो हाईएस्ट पोजीशन है वहां से ये वेव जो स्ट्रिंग है ये लोएस्ट पोजीशन पे आएगी, फिर वापस अपनी जगह जाएगी 20 मिली सेकेंड। ये 20 मिली सेकेंड में पूरी वाइब्रेशन करेगी। तो 5 मिली सेकेंड में कहा होगी? इट विल बी 5 में सेंटर में होगा ये पॉइंट, इसलिए बाकी सब पॉइंट भी सेंटर में ही होंगे। 10 मिली सेकेंड पे इट विल बी एट द लोएस्ट पोजीशन। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट एक कंप्लीट वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से निकालेंगे, आप उसको डिवाइड करेंगे टाइम को, और फिर वो जो भी टाइम कहेगा आपको उसके मुताबिक आप उस पोजीशन को देखेंगे, और उसी पोजीशन के रेफरेंस से फिर आपने रिस्पेक्टिव बाकी पॉइंट्स को भी मार्क करना। डिफरेंस, कोई भी दो डिफरेंस बता सकते हैं आप। वी आर डिस्कस डिफरेंसेस, वहां से इनमें से कोई भी दो डिफरेंस बता सकते हैं। अब ये बताया स्टेशनरी वेव क्रिएट हो रही है, वेव लेंथ इज 1.2 मीटर्स, तो ये आपका 2.4 मीटर्स है, इसका मतलब है इसमें 2 वेव लेंथ आ रही है। एम्पलीट्यूड उन्होंने बताया हुआ है 5 मिलीमीटर है, एक 0.8 पे है, 0.4 पे है, उनके दरमियान में क्या फेज डिफरेंस होगा? इसका मतलब है दिस इज द टाइप ऑफ वेव दैट विल बी क्रिएटेड। 0.4 वाला जो है इट विल बी मूविंग डाउन, और 0.8 मीटर वाला जो है इट विल बी मूविंग अप। 180 डिग्रीज का फेज डिफरेंस
या 0.5 मैं बल्कि मार्क, ये आपका जो पॉइंट आ रहा है ये तकरीबन 0.4 पे है, ये 0.4 पे है, और ये वाला पॉइंट जो है वो 0.8 पे है। About somewhere here. These are the point which will be moving in opposite direction. Therefore, they will be considered with a phase difference of 180 degrees. और आखिर में कहता है जी कि state explain change kinetic energy of the particle at an antinode between t equal to 0 to 5 milliseconds. 0 पे उसके बाद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, और उसके बाद 5 मिली सेकेंड पे जो है इट बिकम 0 बिकॉज 5 मिली सेकेंड पे वो एट द हाईएस्ट पोजीशन जहां पे वो रुक जाएगा, and it will be moving downwards. So kinetic energy will be 0 at 5 milliseconds because 20 milliseconds जो है वो टोटल उसका टाइम पीरियड है। तो 5 मिलीसेकंड पे वो टॉप पे होगा फ्रॉम द सेंटर, सेंटर में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, टॉप पे जीरो काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कंडीशंस, पहले बताई थी सेम फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ, एंड दे मस्ट बी मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब वो स्ट्रिंग बताया था हमने, तो कहते हैं ये वेव फीड हो रही है, व्हाट इज द डिस्टेंस ए बी, तो हम पहले निकालेंगे वेवलेंथ। Wavelength comes out to be 0.048 and it is 1.5 wavelength, so it will be 0.072. टाइम पीरियड हमारा जो है वो 4 मिली सेकेंड है, तो 2 मिली सेकेंड के बाद वो हाईएस्ट से लोएस्ट पोजीशन पे आएगा, और 5 मिली सेकेंड के बाद इट विल बी अगेन 4 पे कंप्लीट कर लेगा, और 5 मिली सेकेंड पे वो दोबारा सेंटर में आ जाएगा। तो 5 मिली सेकेंड पे इट विल बी एट द सेंटर बिकॉज वो टॉप से मूव करके 2 सेकेंड में नीचे आएगा, 2 सेकेंड में वापस जाएगा, 4 सेकेंड हो गए, और फिर 2 सेकेंड में इट विल बी एट द सेंटर। So this will be its position after one complete oscillation.